Hi, Shaks. Hi. You see the happy kids there? Yeah. So that's what exactly we do at Ariro. यार ये तो बड़ा शैतान है। My God. नमस्कार, मेरा नाम वसंत तमिलचेल्वन है। मैं चेन्नई से आ रहा हूँ। और मैं निशा रामासामी। आपके स्टार्टअप का नाम आरिरो वुडन टॉयज। शार्क्स, डू यू नो एक छोटा सा बच्चा एक महीने में एक क्रेडिट कार्ड जितना प्लास्टिक कंज्यूम करता है। So we had the same issue when we had our daughter. So I wanted to give her safe and purposeful toys. So we hired a carpenter to execute our designs. And when we were thinking about the materials, infants tend to put everything into their mouth. So we wanted to ensure it was absolutely safe. And then we coined on neem wood. Neem wood antibacterial and antifungal tha. Not only did our daughter love it, so did our friends. So once we saw it as a business opportunity, then we launched our arirotoys.com in June 2020. So Ariro primarily focuses on 0 to 3 years. So we've designed and executed about 100 products so far. And we've been pioneers in launching products like Neemwood Teether, Picklet Triangle, the Jungle Gym, and many more in India. Wow. So Sharks, our vision is to become a household brand, crafting every child's first toy. भारतीय बच्चों के लिए भारतीय खिलौने. That's the mission we are working on. So we are in to pitch for 50 lakhs for 2.5% of Ariro. So this product right here is called the balance board, which is basically designed for children, but this can hold up to 100 kilos, and I would like to demonstrate that for you today. There are many ways to use this product. They invert it and they slide on it. You put it on a bed, they can slide from there. So any of you want to try it? Yeah, I can try. This, right? Yes. Not bad. Can I keep doing it? Why don't you talk to them? मजा आ रहा है? हाँ, मजा आ रहा है. Feel आ रही है. ये आपका लोगो बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे. Thank you, ma'am. So does it mean something? So it's a fusion of Tamil and English. Oh, it's how a interesting. Tamil and English. And Ariro is the lullaby we sing in Tamil when a baby is born. It's a lullaby. Oh. Can you sing it for us? My voice is very bad. She can. It goes like araro, ariro. It goes like that. Okay. Yeah, that's very nice. बहुत अच्छा मीनिंग है. Thank you so much, ma'am. आप जरा छोटे वाले प्रोडक्ट्स दिखाएंगे थोड़ा? Sure. Yes, sir. Sure. Ma'am, would you like to take a look? Yes. This is a Neemwood Teether. ये मेरे पास है. मुझे नहीं पता आप ही के ब्रांड का है. Yeah. This is only we make. Only you make. Yeah, we have sent it to your house. ये तो फिर है मेरे पास. मैं आपका कस्टमर हूँ. तो वसंत एंड निशा, Yes. वेलकम टू शार्क टैंक. Thank you. तो ये जानना चाहता हूँ कि पहले आपका क्या बैकग्राउंड रहा है, कहाँ से आपको ये कॉन्फिडेंस आया कि ये स्टार्टअप करना है? Primarily, we got it from you guys. We follow everything, whatever you've spoken so far. You are Aman and all the D2C brand owners out there, we follow very closely. And okay, before that time, I did my master's in social work and I floated my company called Innovation Media Solutions. Now that company is leased out to Times of India Group. This is my second venture. She's my wife, Nisha. Yeah, so I did my computer science engineering and then like moved on to study Montessori because I was like really impressed with the philosophy and I wanted to do something with children. तो थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं. जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, बेसिकली यू आर अ टॉय कंपनी. Yes. आप फोकस करते हैं 0 to 3 years Yes. विद एन अप्रोच ऑफ मॉन्टेसरी. आपका डिफरेंशिएशन या यूएसपी जिसको बोलते हैं, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, ये है कि आपके वैल्यू सिस्टम पे ये बना हुआ है जो सिंपल है, पर्पसफुल है और इको फ्रेंडली है. Yes. दैट्स राइट. Yes. तो And handmade, sir. So- हैंडमेड. तो व्हेन यू कम टू द टॉय इंडस्ट्री, टॉय की जो लाइफ साइकिल रहती है वो बहुत छोटी रहती है. तो पेरेंट्स ये देखते हैं कि हाउ कैन दे बाय इनएक्सपेंसिव टॉयज. Looking at what you've shown, it appears that you are very highly priced relative to other toys. Is my assumption correct? So this toy, they start from 8 months. They go up to 6 years. अच्छा. And we have toys that starts from 250 rupees. The entry gate product is 250 rupees. ये कितने का है झूला? ये वाला बड़ा The वाला jungle झूला. gym, right? हाँ, The jungle gym. जंगल जिम. 23,000.
तो आपकी मैन्युफैक्चरिंग कितने की, कितने में बनाते हो आप लोग ये चीज? 12,000 rupees. महंगा बनाते हो और महंगा बेचते हो? हैंडमेड है ना, so that's why it's expensive. सेल्स के बारे में बताइए. Right now we are doing a monthly 25 to 30 lakhs. वेरी गुड. 80% through our website. 80%. Yes. Wow. Through our D2C site. अच्छा. 20% through Nestry and Amazon. And offline के लिए we are tied up with Hamleys and we are there in 43 stores across India. Oh, wow. मैं सुरभि शाह, उम्र 30 और ये है मेरे पार्टनर नमस्ते शाक्स, मैं चेतना शाह, उम्र 55 और हम आए हैं भारत के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर से। तो शाक्स, जनरली ये सभी घरों का नज़ारा होता है। हम जब भी घर पे खाना ऑर्डर करते हैं वह इसी तरह के प्लास्टिक पैकेजिंग में मिलता है, पर हम इसमें सिर्फ गर्म खाना ही नहीं पर माइक्रो प्लास्टिक्स का भी सेवन कर रहे हैं। माइक्रो प्लास्टिक्स के कंजम्पशन से हम कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों को हर रोज न्योता दे रहे हैं और हर साल हम पर्यावरण में 200 मिलियन टन प्लास्टिक स्पून्स, प्लेट्स और कंटेनर्स का अंबार लगा रहे हैं। इस समस्या का समाधान ढूंढने के लिए हम सोल्यूशन लाए हैं कैरोबॉक्स। कैरोग्रीन में हमने रीयूज, रिड्यूस और रिसाइकल का मंत्र अपनाते हुए हमारा सोल्यूशन ढूंढा इन दिस बॉक्स। तो शाक्स, बताइए कौन एक्साइटेड है ये देखने के लिए कि कैरोबॉक्स कितना मैजिकल है? जनरली हम फूड बाहर निकालने के बाद डब्बा फेंक देते हैं, बट कैरोबॉक्स मैजिकल है। यूज होने के बाद हम इसे परफोरेशन से टेयर करेंगे और ये हमें मिल जाएंगी हमारा खाने के लिए एक प्लेट। ओह वाओ. आपको इसको टैप करना है और ये है आपका चम्मच, आपका खाने के लिए रेडी। ये जिस बोर्ड से बना है वो एक फूड ग्रेड बोर्ड है। कैरोग्रीन में हमारा सपना है कि कैरोबॉक्स हर एक फूड डिलीवरी में यूज हो और यही सपना पूरा करने के लिए हम आज कैरोग्रीन की तरफ से 50 लाख रुपीस हमारे कंपनी के 10% शेयर के बदले मांगने आए हैं। सो शार्क्स, हम इंदौर से आपके लिए लाए हैं पोहा और रतलामी सेव जो हम कैरोबॉक्स के ही स्पून्स और प्लेट्स में आपको सर्व करना चाहेंगे। खाना भी खिलाओगे? वेरी गुड. अमेजिंग. थैंक यू सर. थैंक यू. और बड़ा कन्वीनियंट था तोड़ना. थैंक यू. थैंक यू. अमेजिंग. थैंक यू। पोहा किसने बनाया? मम्मी ने बनवाया आज होटल तो में। आप मॉम इंदौरी ये रेसिपी। माँ बेटी. मदर इन लॉ एंड डॉटर इन लॉ. अच्छा, ये इंदौर का पोहा है. इंटरेस्टिंग पता क्या लग रहा है, आज तक ना हमारे ना टीवी सीरियल जो आते थे ना उसमें सास और बहू की लड़ाई दिखाते थे और कभी सास बहू वो हो रहा है. आज आपको देख के ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. मुझे ये लग रहा है कि बॉस इंडिया इंस्पायर होगा कि सास और बहू बिजनेस भी बना सकते हैं. वो वक्त निकल गया, इसीलिए ये शो वो Amazing. सास बहू सीरियल को रिप्लेस कर रहा है. 21वीं सदी का भारत है जो अब सास बहू के रिलेशन तोड़ के एक माँ बेटी की जैसे भी रह सकते हैं. वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात. थैंक यू. आपने कैसे ये आइडिया शुरू किया, क्यों किया? सभी को अपने बचपन की ट्रेन जर्नीज याद होगी जब हमारी सबकी मम्मियाँ टिफिन पैक करके ले चलती थी और तब अगर स्पून रखना भूल जाते थे तो हमें कार्डबोर्ड को ही फोल्ड करके उसका स्पून बना के भेल या उपमा या ऐसा कुछ खा लेते थे। तो बेसिक कंसेप्ट जो दिमाग में था वहीं से स्टार्ट हुआ था। सो मैं प्रोफेशन से इंजीनियर हूँ और फिर मैंने अपने फैमिली बिजनेस में एज एन इंटर्न या एम्प्लॉय काम किया है 2 years एंड आई हेल्प सेट अप अ प्रिंटिंग यूनिट। वहाँ मैंने फैक्ट्री में देखा कि खूब सारा कार्डबोर्ड वेस्ट होता है, इट जस्ट गोज फॉर रिसाइकलिंग। कंसेप्ट बॉक्स का मेरा था पर इनका हिस्ट्री है। शी वॉज अ बेकर एंड शी वॉज लाइक शी थॉट हाउ टू मेक केक्स। तो एक्सपर्टीज इनका है कि कैसे होना चाहिए बॉक्स और कितना अट्रैक्टिव होना चाहिए बेकरी बॉक्सेस। ये बिजनेस आप दोनों ने मिलके शुरू किया है, सीईओ कौन है इस बिजनेस का? शुरू मैंने किया है 2 साल पहले। तो मेरा सिलेक्शन हुआ था IIM बैंगलोर में इन द टॉप 100 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स। तो वहाँ पे हमने 10 आइडिया सबमिट की थी और फिर ड्रिल डाउन होके हमने ये एक आइडिया फाइनल हुआ था। तो अभी तक इस आइडिया को आपके फैमिली ने फंड किया है? नहीं, हमको IIM बैंगलोर से 7 to 8 लाख ग्रांट मिला था, तो मेरा वही मनी अभी तो अंदर आपने बताया कि वो प्लास्टिक बॉक्स का सब्स्टिट्यूट है। मैं इस बॉक्स के बारे में नहीं सोचूंगी जब कोई ग्रीजी चीज़ हो या कोई करी वाली चीज़ हो जिसमें लीकेज की पॉसिबिलिटी है, तो इट्स नॉट रियली अ सब्स्टिट्यूट।
बट हम जब टेक अवे बॉक्सेस मंगवाते हैं तो आपको जो प्लास्टिक बॉक्सेस आता है उसका सब्सटीट्यूट अभी मार्केट में आ गया है, द कार्डबोर्ड बॉक्सेस। उसको आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। द ट्रायल्स विच वी हैव डन, उसमें ये बॉक्स के अंदर, जैसे आप कह रहे हो नूडल्स है, वो इसे नहीं खा सकते, बट इसमें अंदर पैक करके वो लोग डिलीवर करते हैं एंड देन यूज द स्पून्स एंड प्लेट्स। मतलब कहीं ना कुछ प्रमाण में प्लास्टिक हम कम करते ही हैं। और इसका सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस क्या है आपका? कॉस्ट प्राइस अराउंड 11.5 एंड सेलिंग प्राइस इज 15। सुरभि, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आपने अभी तक कितने बॉक्सेस मैन्युफैक्चर किए हैं और कितने सेल करा है और आपके कितने क्लाइंट्स हैं? वी हैव 5 बिग कस्टमर्स। हल्दीराम्स हमारा काफ़ी बड़ा कस्टमर है। उनका जो पैकेजिंग आता है भेल और सोन पापड़ी का, उसमें हमारे चम्मच जा रहे हैं। बालाजी स्नैक्स करके है, वो एक बड़े कस्टमर है। तो ऐसे मिला के हमारे मंथली 4 to 5 लाख स्पून्स सेल होता है। वैल्यू वाइज कितना हो? 80,000 एज पर से बॉक्स का सेल अभी हमारे पास नहीं है दिखाने के लिए, क्योंकि अभी वो सैंपल्स में ही जा रहे हैं। हल्दीराम को कैसे सेल किया, किसने सेल किया, कैसे कस्टमर बना? आसान तो नहीं है हल्दीराम में कुछ भी बेचना। बिल्कुल आसान नहीं था। हल्दीराम में पहले हम उनके रेस्टोरेंट्स में गए, तो हमने वहाँ रेस्टोरेंट में उनका ही फूड हमारे स्पून से ट्राई किया। वेरी गुड। तो हमको लगा कि व्हाई नॉट हल्दीराम। फिर हमने उनको मेल डाला और तब प्लास्टिक बैन हुआ था लकीली उस साल। तो हमने फिर जहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स थे सब जगह प्लास्टिक बैन का मैसेज लिखा कि 1 जनवरी से सब जगह बैन होने वाला है और हम ऑलरेडी एक सब्स्टिट्यूट ले आए हैं आपके लिए। तो फिर हमने सैंपल्स भेज दिए उनसे एड्रेस मंगवा के। तो पहली मीटिंग थी जब उनको सैंपल्स मिल गए थे, उसके बाद तो उनको वो आइडिया अच्छा लगा। आपके पास पैटेंट है इसका? अप्लाइड, यस। यूटिलिटी पैटेंट, डिजाइन पैटेंट, Design. मतलब इस ऐसे कोई नहीं बना पाएगा अगर पैटेंट मिल गया। द कंसेप्ट, द प्लेट एंड स्पून जो बॉक्स में है वो कंसेप्ट। अभी जैसे आपने 4-5 ये रिटेल बड़े वाले पकड़े, अगर आपने यही जोमेटो और स्विगी के साथ कभी सोचा है कि अगर मैं उनके साथ टाई अप कर लूं तो उनकी कितनी कटलरी बचेगी? बस क्योंकि आप वही कोशिश जा रही है अभी। मेल्स, एचआर, मतलब वो वाला प्रोसेस चल रहा है। और मैंने उनको ये भी प्रपोज किया है कि डू नॉट सेंड कटलरी में और एक ऑप्शन है, डू सेंड विद कैरो बॉक्स। वेरी इंटरेस्टिंग। तो ही कस्टमर को पता चलेगा कि कुछ नया आया है। और आपकी ब्रांडिंग भी होगी। ब्रांडिंग। वेरी क्लेवर। नमस्ते शार्क्स, मैं हूँ अश्विनी शिंदे। राम राम शार्क मंडली। मैं हूँ योगेश और हम पुणे से हैं। अरे रे योगेश जी, ये क्या लेके आए आप? ये है बांस, बाम्बू, गोल्डन ग्रास। अरे ये तो मुझे भी पता है, बट आप इसे यहाँ क्यों लेके आए हो? ये तो शार्क टैंक इंडिया का मंच है ना। अरे ये तो मुझे भी पता है, लेकिन जैसे शार्क टैंक ने दुनिया के कई स्टार्टअप को मदद करके दुनिया में क्रांति ला रहे हैं, वैसे ही हम इस बांस से दुनिया बदलने जा रहे हैं। अच्छा, लेकिन वो कैसे? मैं आपसे और सभी शार्क से एक सवाल पूछता हूँ। आपका आखिरी यूज किया हुआ प्लास्टिक टूथब्रश कहाँ है? मुझे क्या पता, मैंने तो उसे फेंक दिया था। सही जवाब। मेरे ख्याल से सभी शार्क का भी यही जवाब होगा, राइट? बिल्कुल। आपके जानकारी के लिए मैं बताता हूँ, प्लास्टिक टूथब्रश का निर्माण 1938 में, यानी लगभग 80 साल पहले शुरू हुआ था। और तब से लेके आज तक, यानी बचपन में हमने यूज किया हुआ पहला प्लास्टिक टूथब्रश आज भी इस धरती पे मौजूद है और हमारे पर्यावरण को खराब कर रहा है। My God. डियर शार्क्स, क्या आपने कभी इसके बारे में सोचा है? लेकिन हमने सोचा ही नहीं, बल्कि उसके ऊपर उपाय भी ढूंढ निकाला है। बाम्बू इंडिया पेश करते हैं बाम्बू टूथब्रश। बाम्बू टूथब्रश एक नेचुरल 100% बाम्बू से बनाया हुआ टूथब्रश है जो कि इजीली कंपोस्टेबल है। हमने आज तक 40 लाख से भी ज्यादा बाम्बू टूथब्रश का निर्माण किया है और 18 अलग अलग देशों में और भारत के 2050 से भी ज्यादा पिन कोड नंबर पे सक्सेसफुल डिलीवर हो चुका है। Wow. हमारे प्रोडक्ट्स bambooindia.com, Amazon, फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस और भारत में कई स्टेट्स में 300 से भी ज्यादा शॉप्स पे रिटेल्स में उपलब्ध है। शख्स, शुरुआत में तो हम सिर्फ 100 ब्रश प्रतिदिन बनाने के लिए भी स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन आज हमारे पुणे प्लांट में हम 50,000 ब्रश प्रति डे बना रहे हैं। डियर शार्क्स, इस प्रोजेक्ट के विकास के लिए हमें 80 लाख रुपए राशि की आवश्यकता है, जिसे हम बाम्बू इंडिया के 4% शेयर्स देकर जुटाना चाहते हैं। हम आप सभी शार्क्स को बाम्बू इंडिया के इस परिवार से जुड़ने का निमंत्रण देते हैं। थैंक यू सो मच। अश्विनी, योगेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। थोड़ा और अपने बैकग्राउंड के बारे में बताइए आप। अश्विनी और हम KG to PG हमने पुणे में ही किया है। KG to PG। तो पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर मैनेजमेंट में कंप्लीट करने के बाद मैंने IT ज्वाइन किया, फिर सॉफ्टवेयर डेवलपर, टीम लीडर,
प्रोग्राम मैनेजर, कंट्री हेड, और फिर 5 साल में मैं जर्मनी में था। अच्छा। और मुझे क्रिएटिविटी के लिए काफ़ी अवार्ड्स मिले थे। तो मैंने सोचा कि ये क्रिएटिविटी में हमेशा फॉरेन क्लाइंट्स के लिए कर रहा था, तो मुझे लगा कि शायद मैं वापस इंडिया आके कुछ अपने देश के लिए करूँ। ऐसा लगा कि 1 साल का ब्रेक लिया जाए और बिजनेस किया जाए, और अभी 1 साल के 5 साल कैसे हुआ पता ही नहीं चला। और ये कैसे चुना आपने कि आपको यही काम करना है, बैम्बू के टूथब्रश? क्योंकि नमिता मैम जानती है कि पुणे के आसपास बहुत सारे बाम्बू अवेलेबल हैं। अच्छा। और जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, इंडिया इज वर्ल्ड 2nd लार्जेस्ट बाम्बू ग्रोइंग कंट्री इन द वर्ल्ड। वाह। और हम वो पोटेंशियल यूज ही नहीं कर रहे, तो सोचा कि हम क्यों नहीं कर सकते। सर मैं बताना चाहूँगा कि वी आर द फर्स्ट इन इंडिया हु लॉन्च बाम्बू टूथब्रश इन इंडिया इन 2015, और हम पायोनियर हैं। शुरुआत में हम हैंड क्राफ्टेड ब्रश बना रहे थे, क्योंकि मुझे पता है कि प्लास्टिक टूथब्रश का 5000 करोड़ का मार्केट है इंडिया में, और 2 ही कंपनी है जो 40% लेके बैठ गई है, और बाकी 20% में बाकी लोकल प्लेयर झगड़ा कर रहे हैं। तो उन दोनों में से ही एक कंपनी हमारे साथ है। तो उन्होंने हमको ना बोल के ग्रूम किया इस बिजनेस में। उन्होंने हमको सिखाया कि हाउ टू मेक अ क्वालिटी ब्रश। वो सब करके आज अभी 2 साल हुए, वी आर सक्सेसफुली डिलीवरिंग ऑल द GMP स्टैंडर्ड्स जो होते हैं। उन्होंने अपना किलर पैदा कर दिया। नहीं, किलर नहीं सर। एक्चुअली क्या होता है, अगर कोई कॉम्पिटिटर आएगा तो वो कंपटीशन नहीं होगा, इट्स अ कोलैबोरेशन। तो आप उनके OEM बन जाएंगे फिर? नहीं, अभी ऑलरेडी है, हम ऑलरेडी है। और एक आपने ये नेकलेस भी यहाँ पे जी जी, वो भी बाम्बू कर से रखा बनाया है। हुआ है। जो मैंने पहना है वो भी बाम्बू से बनाया हुआ है। आपके सर हाथ में जो ब्रश है वो वर्ल्ड्स सॉफ्टेस्ट ब्रश है। ये देख रहा हाँ, है, फील करके ही लग रहा है। इट इज कॉल्ड एज नैनो ब्रिसल्स। नैनो ब्रिस। नैनो ब्रिसल्स हमने जब स्टार्ट किया था 2015 में, तो उसकी प्राइस 180 रुपये पर ब्रश थी, बाम्बू ब्रश की, जो हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम प्रोसेस इनहांस करते करते सप्लाई चेन एस्टेब्लिश करके आज वो हम MRP 45 रुपीज तक लेके आए। ये 45 का है? यस, MRP आपकी कॉस्ट 15 रुपीज। योगेश और अश्विनी, और एक बात बताइए, आपने काफी भारी वैल्यूएशन मांगा है 20 crores का, तो आपकी सेल्स क्या है? लास्ट ईयर इवन दो देयर वाज अ कोविड, वी हैव क्लोज 2.8 CR। नाइस। और अभी इस इवन दो 3 मंथ्स हमारा लॉकडाउन था मई में, आपको पता ही है पुणे में, फिर भी 2.2 करोड़ हमने टिल अक्टूबर मिड तक हो गया हमारा। इस साल हम 3.8 या 4 को टच करेंगे। वेरी गुड। तो मतलब सस्टेनेबिलिटी और इनकम का एक बैलेंस आपने स्ट्राइक किया है। राइट। और अश्विनी जी का क्या रोल रहता है ये कंपनी में? मैं सारा एडमिन का देखती हूँ और ऑनलाइन पोर्टल के सारे ऑर्डर्स देखती हूँ। और आज की तारीख में आपका दोनों की हिस्सेदारी है कि और भी शेयर होल्डर है? नहीं, अभी तो हम दोनों की है। तो आप सबके लिए प्राइवेट लेबलिंग ही करेंगे, मतलब वाइट लेबल गुड्स बनाएंगे, यही आपका गोल है, या आप चाहते हैं कि अपना भी ब्रांड बनाएंगे? पीयूष जी, एक्चुअली क्या है, व्हाइट लेबलिंग का हमारा काफी अच्छा चल रहा है अभी। जो ब्रेड बटर होता है या फिर जो भी ग्रोथ है, तो अभी हम मार्केट का अंदाजा ले रहे थे कि क्या कहाँ पे जा सकता है, और अभी ऐसा लग रहा है कि नाउ इट्स अ गुड टाइम। अभी मार्केट भी ओपन हो रहा है, नए नए आइडियाज भी आ रहे हैं, और इतना बड़ा मंच शार्क टैंक का मिल रहा है, और हमको पहले सीजन में चांस मिला, तो ऐसे लगा कि दिस इज अ गुड टाइम कि हमारे ब्रांडिंग से, या बाम्बू इंडिया ब्रांड जो मेड इन इंडिया ब्रांड है, जो मेक इन इंडिया जो हमारा प्राइड है, वो हमको आगे लेके जाना है।